Hello everyone, I am Parikyan Kumar and you are watching acoustic classes. So today we are going to do part 2 of chemistry chapter 1 matters in our surrounding. We have completed the explanation part and today we are going to do part 2 of the revision portion. We have completed many of the topics and our next topic is some important properties of liquid. So wait, we have completed all these topics. So let's move to our next topic. Yes, our next topic is some important properties of liquid. So our first point is surface tension. It is an important property of liquid which is due to intermolecular force of liquid particle. Liquid surface feel stretched due to surface tension. The molecules in liquid are held closely and hence attack each other. A molecule in the bulk of liquid is attracted equally on all sides so that the net attractive pull on the molecule is zero. This is the important line, so you can mark it. However, a molecules which lie at the surface, known as surface molecules, is subjected only to the attractive force of the molecules below it. This is because there are no molecules above it. Therefore, after some surface molecules experience a result downwards attractive force within the liquid. This creates an imbalance of force at the surface. In other words, the liquid surface is under tension due to unbalanced force. This effect is called surface tension. सो बेसिकली हमें इसमें सरफेस टेंशन के बारे में बताया गया है. मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ. लिक्विड का जो सरफेस होता है वो अंडर टेंशन होता है ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स और जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सरफेस टेंशन डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. The decrease of surface tension with increase of temperature is because of the fact that kinetic energy of molecule increases. As a result, the intermolecular force decreases. Therefore, surface tension will also decrease. For example, the cloth was washed more effectively in hot water than in cold water due to the decreased surface tension in hot water. Basically, इसमें intermolecular force के बारे में बताया गया है. kinetic energy अगर टेम्परेचर हाई होता है तो सरफेस टेंशन कम होता है. और द डिक्रीज ऑफ सरफेस टेंशन विद इंक्रीज ऑफ सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. सरफेस टेंशन एंड नेचर ऑफ लिक्विड. Since surface tension of a liquid is due to intermolecular attractive force, therefore the magnitude of surface tension is a measure of intermolecular attractive force. When the attractive force between the molecules are larger, the surface tension is also larger. तो इसमें कुछ सरफेस टेंशन एंड नेचर ऑफ लिक्विड में का टॉपिक है ये, जिसमें कहा गया सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि बेसिक है, हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी पढ़ा था. एंड द सेकेंड इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मोलिकुलर आर लार्जर, सो द सरफेस टेंशन इज लार्जर. अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा. इसका इम्पोर्टेंस ऑफ सरफेस टेंशन भी देख लेते हैं. इसका फर्स्ट पॉइंट है कैपिलरी एक्शन. व्हेन वन एंड ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज पुट इनटू ए लिक्विड, देन दैट वेट ग्लास द लिक्विड राइज इनटू द कैपिलरी ट्यूब टू ए सर्टेन हाइट एंड देन स्टॉप. कैपिलरी ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ होती है. आई होप आपके टीचर ने आपको साइंस लैब में दिखाई होगी. मैं आपको बता देता हूँ, कैपिलरी ट्यूब टेस्ट ट्यूब जैसी ही होती है, बस सर्टेन चेंजेस होते हैं टेस्ट ट्यूब एंड कैपिलरी ट्यूब में. तो द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन. द राइज ऑफ लिक्विड
in a capillary is due to the inward pull of surface tension acting on the surface, which pushes the liquid into the capillary tube. This phenomena is very important. For example, water below the surface of the earth rises to the plants through the roots. Oil rises into the wicks of an oil lamp. Ink rises in a blotting paper are example of capillary action. ये कुछ एग्जांपल्स थे कैपिलरी एक्शन को समझाने के लिए। मैं आपको कैपिलरी एक्शन की डिफाइन बता देता हूँ। द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। बेसिक है, अगर कोई मूवमेंट है कैपिलरी ट्यूब में तो उसे हम कैपिलरी एक्शन कह देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है spherical shape of drop. The liquid drop have nearly spherical shape. We have learned that surface tension tries to decrease with the surface area of a liquid to the minimum. Since the sphere has minimum surface area for the given volume of liquid. बेसिकली इसमें कहा गया है कि सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एरिया को डिक्रीज करता है। देयरफॉर स्फीयर में सबसे कम मिनिमम सरफेस एरिया होता फॉर द गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्फीयर में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। व्हेन ए लिक्विड फ्लो थ्रू ए ट्यूब द लेयर ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट with the walls of the tube is stationary, whereas liquid in the center has the highest velocity. Intermediate layer moves with a gradation of velocity. The flowing liquid may therefore be regarded as composed of a number of concentric tubes sliding past one another like the tubes of a telescope. Each layer exerts a drag on the next, and the work must be done to maintain the flow. Similarly, in a liquid flowing over a glass plate, the layer in contact with the plate remains stationary. The velocity of different layer increase continuously with the distance from the fixed surface being the highest in the free surface of the liquid. On account of relative motion, each layer experiences a frictional force and behave as it dragged in backward direction. The internal friction or resistance with the relative motion of its own, that is the flow of liquid, is known as viscosity. Glycerin does not flow as easily as water or alcohol. Thus glycerin is said to more viscosity than water or alcohol. The reason of this internal resistance is molecular force working between the molecules of liquid. It depends on cohesive force between the molecules. बेसिकली इसमें विस्कोसिटी के बारे में एक्सप्लेन करा गया है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। विस्कोसिटी मतलब एग्जांपल के साथ बताते हैं, ग्लिसरीन वाटर की तरह इजीली फ्लोट नहीं कर पाता, इसलिए ग्लिसरीन जो है वो एक ग्लिसरीन के अंदर मोर विस्कोसिटी है एज कम्पेयर टू वाटर। इसका बेसिक ये होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से। बेसिकली विस्कोसिटी यही होता है एंड आप ये डिफाइन कर सकते हैं, मतलब डिफाइन पढ़ सकते हैं सो दैट आपको ये और इजीली क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, viscosity and nature of liquid. The viscosity is also related to the intermolecular force in the liquid. If the intermolecular force are larger, the viscosity will be high. For example, water has higher viscosity than methylene alcohol because intermolecular force in water are more than in methylene या फिर alcohol. ये भी viscosity के बारे में बताया गया है। जैसे
विस्कोसिटी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड होती है एंड जितनी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उतनी ही हाई विस्कोसिटी होगी। जैसे कि वाटर की विस्कोसिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू मिथिलेन अल्कोहल, क्योंकि वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। With increase in temperature, the average kinetic energy increase and the intermolecular force can be easily overcome. Therefore, the liquid start moving faster. मतलब विस्कोसिटी अगर हाई होगी तो टेम्परेचर लो होगा। विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर, यानी कि विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, इजीली ओवरकम होगा, इसलिए विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। इंपॉर्टेंस ऑफ विस्कोसिटी देख लेते हैं। द शेप ऑफ शिप, एरोप्लेन, रॉकेट्स एक्सेट्रा इज डिजाइंड इन such a manner so that they may have least effect on their velocity due to the friction of water, air, etc. In order to decrease the friction in the various types of machines, suitable lubricants are selected on the basis of viscosity. Viscosity is very helpful in determining the pressure required for sending liquid like petrol, water, etc. through pipeline. ये कुछ यूजेस थे या फिर इम्पोर्टेंस थी ऑफ विस्कोसिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, काइनेटिक मॉड्यूल ऑफ गैस। इन गैस फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, द मोलिक्यूल्स लाइज मच फार्दर अपार्ट देन दे डू इन ए सॉलिड और इन लिक्विड। There is negligible force of attraction between the molecules, so they are free to move within the space available to them. The molecules in gases moves much faster than in liquid and therefore possess much more kinetic energy. ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे गैसेस के जो कि हमने पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन वीडियो में कवर कर लिए थे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मोर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड है, यहाँ पे मैंने बस बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट द molecules constantly collide with each other or with the walls of the vessels they are contained in. With every collision, the direction and speed of molecule changes. Because of constant collision and continuously bombardment by the molecules on the walls of vessels, they exert pressure. इसमें ये अच्छा पॉइंट है जो इसमें बेसिकली कहा गया है कि गैस जो है वो शेप कंटेन कर लेती है ऑफ द कंटेनर जिसमें वो प्रिजर्व होकर रखी है, यानी कि गैस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड के साथ भी ऐसा है, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर वेयर एज सॉलिड टेक शेप अपनी चेंज नहीं कर सकता, सॉलिड रिजिड होता है। इसमें एक और पॉइंट है कि गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है एंड स्पेस जाता है जिससे वे कंटिन्यूसली मूविंग करते रहता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है एंड वे वॉल्स ऑफ कंटेनर से बार बार कोलाइड होने की वजह से उनकी स्पीड भी चेंज होती रहती है एंड वो कंटेनर्स वॉल ऑफ द कंटेनर्स पे प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू देयर मूवमेंट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एक्सर्शन ऑफ प्रेशर। सॉलिड एक्सर्ट pressure only in downward direction. Liquid exert pressure downward as well as to the sides, but gases exert pressure in all directions. This pressure is due to bombardment of the particle against the walls of the container. ये भी अच्छा टॉपिक है। इसमें कहा गया सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उनके मोलिकुल्स मूव नहीं करते तो वो बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है वो अपना वेट इनटू ग्रेविटी
मास इंटू ग्रेविटी लगाएंगे, फोर्स। whereas liquid exert pressures downward as well as to the sides, यानी कि लिक्विड डाउनवर्ड भी लगाएगा एंड साइड्स में भी लगाएगा, whereas गैस जो है वो सब डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर। अब देख लेते हैं होमोजेनस नेचर। गैसेस हैव सिमिलर कंपोजिशन इन ऑल पार्ट्स एंड आर देयरफॉर होमोजेनस इन नेचर। ये हमने उसमें कवर कर लिया था, बट मैं बता देता हूँ होमोजेनस नेचर का। अगर सिमिलर कंपोजिशन है तो वो होमोजेनस इन नेचर है। अब सेकंड टॉपिक, लिग्निफिकेशन। गैसेस कैन बी लिग्निफाइड बाय कूलिंग एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर। इसमें बेसिकली कहा गया है कि गैसेस को हम लिग्निफाइड यानी कि प्रेशर के बाद उन्हें लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी, liquefied petroleum gas. Diffusion. Similarly, when a bottle of a perfume is opened in the drawing room, its smell separate and can be detected all over the room. In fact, all gases possess this property of intermixing with one another without any mechanical aid to form ए होमोजेनस मिक्सर कॉल्ड डिफ्यूज़न। इसमें बेसिकली डिफ्यूज़न और होमोजेनस को दोनों को मिक्स करके डिफाइन कही गई है। डिफ्यूज़न का डिफाइन होती है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें एग्जांपल का दिया गया है परफ्यूम का। जैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम परफ्यूम की बोतल को ओपन करेंगे तो उसकी फ्रेगनेंस पूरे रूम में सेपरेट हो जाती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स परफ्यूम इज ऑल्सो ए गैस, तो उनमें स्पेस कम ज़्यादा होता है एंड फोर्स कम होती है, तो वो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, देयरफॉर वे मूवमेंट करते हैं एंड ऑल ओवर द रूम सेपरेट हो जाते हैं। एंड अगर दो गैसेस कंपोजिशन ऑफ गैसेस डिफरेंट है तो उन्हें हम हेटेरोजेनस इन नेचर कहते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन। सेपरेशन ऑफ गैसेस। Gases can be separated from the mixture of gases by the use of diffusion. When a mixture of gases is diffused, the lighter gas will diffuse quickly than the heavier process of gas. In this way, by repeating the process of diffusion, gases can be separated from the mixture. इसमें बेसिकली कहा गया है हैवियर गैस जो होगी वो स्लोली डिफ्यूज़ करेगी एंड लाइटर गैस जो होगी वो डिफ्यूज़ क्विकली करेगी। ये रिपीटिंग प्रोसेस के बाद हम गैस को सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिलेटिव डेंसिटी एंड मोलिकुलर वेट ऑफ द गैसेस। Graham's law of diffusion can be used for the determination of relative density and molecular weight of gases. सो बेसिकली इसमें कहा गया है कि हम विद द हेल्प ऑफ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कि हमने दो बैलून लिए, इसमें हमने हाइड्रोजन भरा एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमने हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के बैलून को दोनों एक ही टाइम पे रिलीज़ करा इन एयर, तो हाइड्रोजन वाला बैलून जो होगा बहुत जल्दी वो हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वेरेस कार्बन डाइऑक्साइड वाला थोड़ा सा लेट होगा। ऐसा क्योंकि हाइड्रोजन का इंटरमोलिकुलर वेट। सो इसमें बेसिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलून को दोनों एक साथ को एक ही टाइम पे रिलीज़ करेंगे तो हाइड्रोजन वाला जल्दी खाली होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला स्लो खाली होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1 होता है, वेरेस कार्बन का मोलिकुलर वेट 44 होता है। इसलिए जिसका कम मोलिकुलर वेट होगा वो जल्दी खाली होगा। उसी हेल्प से ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की ही हेल्प से हम गैसेस को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं।
ये था ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। इंटरकन्वर्जन मतलब हम स्टेट ऑफ मेटल यानी कि सॉलिड को लिक्विड या फिर लिक्विड को गैस चेंज कर सकते हैं। ये हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत ही ब्रीफली समझा था, बट हम इसमें भी एक बार समझ लेते हैं। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज्ड, its physical states also change. When a substance changes its states, it can be reverted to the original state by alternating its temperature, or in case of gas, the process can be managed by changing its pressure. इसमें बेसिकली कहा गया है कि अगर सॉलिड या फिर लिक्विड है तो हम उसका टेम्परेचर चेंज करके उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, बट अगर गैस है तो हम उसका टेम्परेचर या फिर प्रेशर चेंज करके उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। सो मेल्टिंग देख लेते हैं। When the substance in solid state is subjected to heat, the molecules observe heat energy with increase the kinetic energy of molecules. This result in increase of kinetic energy of the molecules, which in turn leads to increase in temperature. Further supply of heat energy does not rise to the temperature of molecules. Instead, the heat energy is used up in decreasing the intermolecular force of attraction, which result in increase in intermolecular space. The molecular arrangement of the solid change to that of liquid. The temperature at which a solid gets converted to liquid state at the atmospheric pressure is called melting. मेल्टिंग का मतलब कहा गया है कि अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे सॉलिड में तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें हीट ऑब्जर्व हो जाएगी, लेटेंट हीट या फिर काइनेटिक हीट इंक्रीज हो जाएगी एंड वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हीट अगर मॉलिक्यूल्स में जाएगी तो वो उनका स्पेस को ओवरकम करेंगे, यानी कि स्पेस बढ़ाएंगे एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिससे कि वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। Effect of pressure. The effect of pressure melting point of solids depend upon the nature of solid. For solids with expand on melting, increase in pressure increase the melting point. This is because increase in pressure oppose expansion. For example, paraffin wax, silver, gold and copper. For solid which contract on melting, increase in pressure decrease the melting point. This is because increase in pressure favors conduction. For example, ice, cast iron, brass. इसमें बेसिकली कहा गया है कि the effect of pressure on the melting points depends upon the nature of solids. अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड्स अपोज करेगा एक्सपेंशन को, यानी कि इन सरफेस एरिया को अपोज करेगा, जिसमें एग्जांपल दिए गए हैं पैराफिन वैक्स, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। फॉर एग्जांपल, for solids which contact on melting, increase pressure decrease the melting point. मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। सब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू ए सॉलिड डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, thereby allowing substance to melt at lower temperature. Example, rose metal, alloy of tin, lead and bismuth. बेसिकली इसमें कहा गया है कि अगर हम सोल्यूट में सॉल्वेंट मिक्स करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। मान लीजिए ये एक सॉलिड है, उसमें इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स है जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है एंड फोर्स सबसे ज़्यादा है। ये मेरे से अच्छे से नहीं बना, बट
ये भी जिनमें अरेंजमेंट अच्छे से नहीं होता उन्हें हम एमोस्फेरस सॉलिड कहते हैं। ये हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखा था, यू कैन वॉच इट। एंड डिफरेंस आपको एमोस्फेरस लिक्विड एमोस्फेरस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मिल जाएगा। सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट कि अगर हम सॉलिड में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे, मान लीजिए लेट मी चेंज द कलर, अगर हम इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड इन स्पेस और भी ज़्यादा कम, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। सो नेक्स्ट टॉपिक, a melting point of this alloy 95.4 degree Celsius. Melting point of PV less than 370 degree Celsius. Melting point of SN 231.9 degree Celsius. Melting point of BI 271 degree Celsius. ये कुछ डिग्रीज हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। Freezing, the process of conversion of liquid state to solid state, is called freezing. It is opposed the process of melting. This is carried out by attracting heat from liquid. The temperature at which a liquid converts into solid at atmospheric pressure is called freezing point of the liquid. And the factors which affect the melting points of a substance obviously affect freezing point. A mixture of 3 parts of ice and 1 part of common salt is called freezing mixture, which is used to produce a lower temperature of minus 21 degrees Celsius. Freezing mixture are used for preservation of food, especially perishables such as fish, meats, and other ready to eat frozen food. इसमें फ्रीजिंग का डिफाइन की गई है। फ्रीजिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। इसमें फ्रीजिंग होती है एटेक्शन ऑफ काइनेटिक हीट लेटेंट हीट से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आइस ए यूनिक सॉलिड because it is less dense as solid than it is as a liquid. Normally a liquid becomes denser as it freezes and its molecular pack close together. However, as water freezes its molecules from a lattice work of hexagons that contain empty space. These hexagons cause water to expand 11% in volume when it freezes. This expansion means that ice has fewer molecules per cube centimeter than water has, so it is less than dense than water to be prescribed. Ice density is 0.17 gram per centimeter power 3 and water is maximum density is 1 gram centimeter power cube at 3.98 degrees Celsius. This unique property of ice can cause problem on land and sea. The expansion of ice is responsible of weathering of paved surface such as roads and parking lot. Ice expand in crevices in these surface opening cracks that separate and eventually create potholes. While because of this ice float on water, about 90% of its remain below the water surface. इसमें बेसिकली आइस के बारे में कहा गया है कि आइस के हेक्सागन्स में
डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एंड आइस में आइस के हेक्सागन्स में वाटर कंटेन होता है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बॉइलिंग द प्रोसेस ड्यू टू विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री केल्विन। एक बार डिफाइन देख लेता है। द constant temperature at which a liquid rapidly change into gaseous state by absorbing heat energy at atmospheric pressure is called boiling point. Boiling point can also be defined as the temperature at which the vapor's pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure under normal condition. So next move to the another topic, factors affecting the boiling point. This is also a good topic. ये most of the time स्कूल एग्जाम में पूछा गया है। Effects of pressure. The boiling point of a liquid increase with increase in external pressure. This is the reason why water boils at a lower temperature than 100 degrees Celsius at higher altitude. In a pressure cooker, water is subjected to heat in a closed vessel in confined space. The steam generated in fixed volume increase the pressure beyond the normal atmospheric pressure. Hence, the food is cooked earlier in short span of time. इसमें बेसिकली कहा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी इफेक्ट होता है, क्योंकि हायर अल्टीट्यूड्स पे वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पॉइंट की जगह कम पॉइंट पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वेयर एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज. व्हेन ए सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड और एडेड इन ए लिक्विड, देन the boiling point of a liquid rise beyond the normal boiling point. For example, when common salt is dissolved in water, the salt boils at a temperature greater than 100 degrees Celsius. Impurities, effect of impurities में कहा गया है, let me explain. अगर एक ही कंटेनर है, उसमें इसमें पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, इनमें स्पेस होगा एंड फोर्स कम होगा। तो अगर हम इनमें इम्प्योरिटीज मिक्स कर दें, मान लीजिए सोल्यूट में सॉल्वेंट हमने मिक्स कर दिया कॉमन सोल्ट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी एंड स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, वेयर एज फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन। Evaporation. The process Evaporation process is the conversion of liquid state to gaseous state, which can also be brought about even without supplying heat energy to the liquid. In a liquid, the surface molecule possesses higher kinetic energy than the molecules in the bulk of the liquid. Due to this reason, the molecules break away from the force of attraction of the other molecules and go into vapors state. So we can say that the process of liquid change into vapors state even below its boiling point is called evaporation. Evaporation का भी मतलब सेम ही है एज वेपोराइजेशन जो हमने ऊपर करा था। नहीं, ऊपर नहीं, हम बाद में करेंगे। इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन सेम ही होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स स्टेट at its boiling point is called vaporization, and the process of conversion of liquid
into vapor state below its boiling point is called evaporation. दोनों में माइनस का ही डिफरेंस होता है. अगर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर ने बॉयल कर गैसेस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट कर दिया तो इसे इवेपोरेशन कहेंगे. वेयर एज अगर फिक्स्ड पॉइंट पे स्टार्ट करा है तो उसे फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट पे स्टार्ट करा है वेपर्स बनना तो उसे वेपोराइजेशन कहेंगे. माइनस का डिफरेंस होता है. फैक्टर्स affecting the evaporation. Temperature. The rate of evaporation increase the temperature of liquid. For example, wet clothes get dry faster in summer than water season. I hope ये समझ में आ गया होगा. इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ था नहीं. Surface area. The rate of evaporation increase in the surface area. Evaporation increase होती है अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. क्योंकि जैसे एग्जांपल में अगर कोई पानी लिक्विड गिर जाता है तो हम उस पर पोछा मारते हैं क्योंकि उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंड इवेपोरेशन जल्दी होती है. फॉर एग्जांपल सेकेंड, हम चाय को कभी कभी सॉसर में करके पीते हैं जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एंड चाय जल्दी ठंडी होती है. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर कितने परसेंट है एयर में. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर लोअर्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होगा. फॉर एग्जाम्पल, इन रेनी सीजन क्लोथ्स नीड्स मोर टाइम टू गेट ड्राई देन इन समर सीजन. बेसिकली अगर एग्जाम्पल में अगर हम कपड़ों को रेनी सीजन में धो के सुखाते हैं तो उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इवेपोरेशन के वेपर्स जो पार्टिकल्स हैं उन्हें स्पेस नहीं मिल पाता एयर में क्योंकि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है. देयरफॉर इवेपोरेशन स्लो होता है. नेक्स्ट वो देख लेते हैं विंड स्पीड. द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, टू ड्राई द वेट क्लॉथ्स wet floor after cleaning are made servants switch on ceiling fan. जैसे इसमें एग्जांपल कहा गया है विंड स्पीड हाई होगी तो इवेपोरेशन भी हाई होगा. हम पोछा लगाने के बाद पंखा चला देते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है पोछे की वजह से एंड विंड स्पीड होती है तो वो जल्दी इवेपोरेशन केस करता है. प्रेशर. द रेट ऑफ इवेपोरेशन कैन ऑल्सो इंक्रीज विद ए डिक्रीज इन द गैसेस प्रेशर अराउंड ए लिक्विड. Molecules like to move from area of higher pressure to lower pressure. The molecules are basically sucked into the surroundings areas to make the pressure equal to the surrounding. If the vapor pressures of the surrounding increase to a specific level, the rate of evaporation will slow down. इसमें कहा गया है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा. नेचर ऑफ लिक्विड. Different liquid have different rate of evaporation. A liquid having weaker interparticles attractive force evaporation at faster rate because less energy is required to overcome the attractive force. For example, acetone evaporates faster than liquid. इसमें कहा गया है नेचर ऑफ लिक्विड पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करेगा. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी एंड स्पेस ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगी. एग्जांपल में एसीटोन इवेपोरेट्स होता है जल्दी एज़ कम्पेयर टू वाटर क्योंकि उसमें फोर्स कम होती है एंड स्पेस ज़्यादा होता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन. ये स्टेट ऑफ मैटर में आता है. द कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. मतलब अगर हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हम उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे. This can be carried out by cooling the gas below a particular temperature. When heat is extracted from the gas, the kinetic energy of molecule decreases, and hence temperature falls, leading to condensation. The conversion of gaseous state to liquid state can also be brought about by the application of pressure. The gases have to be cooled below a certain temperature and then subjected to application of higher pressure.
इसमें बेसिकली कंडेंसेशन के डिफाइन एंड स्टेट ऑफ मैटर को कहा गया है। अगर हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। हम गैस के अंदर से काइनेटिक एनर्जी या फिर लेटेंट हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा एंड स्पेस डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये सेम हम प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। इफेक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑन क्लाइमेट। The formation of dew, fog, and clouds are good example of condensation. During daytime, when the temperature is high, water in water bodies evaporate, and this process goes on continuously till the air does not become saturated with water vapors. When the temperature falls during night time, the air becomes saturated with water vapors. The temperature at which the atmospheric air becomes saturated with water vapors is called dew point. On further lowering of temperature, some of the water vapors condense and water droplets condense a few dew. If the condensation of water vapors take place on floating dust particles, it results in the formation of fog or mist. Similarly, in the upper parts of atmosphere, condensed water droplets appear as cloud. इसमें basically dew, fog and cloud के बारे में कहा गया है, जो कि I don't think ये इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये कंडेंसेशन के एग्जाम्पल हैं, आप एक बार इसे रीड कर सकते हैं। कूलिंग प्रोड्यूस ड्यू टू इवेपोरेशन। दिस इज़ द गुड टॉपिक, ये मोस्ट ऑफ द टाइम CBSE एग्जाम में पूछा गया है। The liquid molecules absorb energy from the surroundings and overcome the force of attraction, thus changing into vapor states. Since surroundings lose energy, it becomes cooler. These particles is made use in various daily life activities. बेसिक इसमें कहा गया है कि अगर इवेपोरेशन होगी तो कूलिंग होगी, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। कुछ पॉइंट्स है इसमें। कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग समर्स। फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द outer surface of glass containing ice cold water. Cooling of water in earthen pots. Cooling sensations produced when alcohol is poured on palm. बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। अगर ये सरफेस है, इसके ऊपर लिक्विड है, इनमें स्पेस होगा एंड इवेपोरेशन में ये वाले जो ऊपर वाले हैं ये इनसे एनर्जी ले लेंगे एंड अपने सराउंडिंग से भी एनर्जी लेके ये ऊपर इवेपोरेट हो जाएंगे। वेयरएस ये नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं ये अपने ज़मीन में से या फिर सरफेस में से एनर्जी लेंगे एंड अपने सराउंडिंग में से एनर्जी लेंगे एंड देन वो इवेपोरेट करेंगे एंड सराउंडिंग में से एनर्जी लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से कूलिंग होगी। ये था इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। So move to the next topic, sublimation. This is the phenomena by which a certain substance on heating change state to the gaseous state without undergoing the liquid state on a cooling change back to the solid state. This is known as sublimation. For example, iodine, naphthalene, solid carbon dioxide, dry ice, ammonium chloride, etc. exhibit sublimation and change directly into gaseous form when heated. This can be explained with the help of the following experiment. मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाया शो करा है इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्लिमेशन का मतलब होता है चेंज होना स्टेट का फ्रॉम सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू मतलब सॉलिड टू गैस। इसका एग्जांपल है ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को
हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो सीधा सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि आपने देखा होगा स्टेज पे धुआं धुआं सा रहता है, बट ड्राई आइस है, ड्राई आइस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। The heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat. Latent heat does not rise or increase the temperature. The word latent means the heat which we supply is used up in overcoming the force of attraction between the particles of a substance during the change of state. Basically, latent heat को कहा गया है the energy of heat required to convert a unit mass of substance from a state to another state. ये लेटेंट हीट की डिफाइन है। लेटेंट हीट जो है एनर्जी इनको इंक्रीज नहीं करती। ग्रीक लैंग्वेज में लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। लेटेंट हीट हेल्प करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए। लेटेंट हीट के दो टाइप होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। लेट्स सी द डेफिनेशन। The latent heat of fusion or melting of a solid in the quantity of heat in joule required to convert 1 kilogram of solid at its melting point to liquid without any change in temperature. For example, latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 की power 5 joule per kg. ये एक क्वांटिटी है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। ये एनएसओ एग्जाम में पूछी जा सकती है। Which is nothing but heat supplied to change 1 kg of ice at its melting point 0 degree Celsius to water at same temperature, that is 0 degree Celsius. Basically इसमें कहा गया है energy of heat required to convert solid means ice to water is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 power 5 joule per kg. joule होता है एनर्जी यानी कि हीट को मेज़र करने की क्वांटिटी। लेट मी टेल यू समथिंग। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें से आइस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन कूलिंग, क्योंकि वाटर में लेटेंट हीट होगी वेरेस आइस में लेटेंट हीट नहीं होगी। इसलिए वाटर आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू वाटर at 0 degree Celsius. So latent heat of vaporization देख लेते हैं, liquid to gas. The latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joule required to convert 1 kilogram of the liquid at as its boiling point to vapors or gas without any change in temperature. The latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 power 5 joule per kg or 22.5 into 10 power 5 joule per kg. बेसिकली दोनों सेम ही है। इसमें कहा गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू गैस is called latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization of water is 22.5 in 10 power 5 joule per kg. मैं सेम पॉइंट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट के समय टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। इसमें लिखा है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें से स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग एज कम्पेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रेजेंट होगी, वेयर बॉइल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रेजेंट नहीं होगी। इसलिए स्टीम वाटर इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग, whereas ice is more effective in cooling. So we have completed our division portion. This is the part 2. So in next video we do the MCQs. First we do the MCQs for the revision,
Then we take the do the MCQs of the 23-24 model of 23-24 edition of NSO book. Thank you everyone.